بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ بھارت فوج نے ایل او سی پر متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے نکیال، کھوئی-رٹہ، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج کی منہ توڑ جوابی کارروائی، بھارتی فوج کی بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار اور پرعزم ہے۔ آپ کو بتائیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ پاک فوج کی منہ توڑ جوابی کارروائی کے حوالے سے بھارتی فوج کی بندوقیں خاموش کرا دی گئیں۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ آپ کو بتائیں پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، بھارتی فوج نے ایل او سی پر متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے نکیال، کھوئی-رٹہ، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج کی منہ توڑ جوابی کارروائی، بھارتی فوج کی بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار اور پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا قومی سلامتی پر سیاسی رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ۔ ان کیمرہ سیشن میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر قومی سلامتی کے امور زیر غور آئے۔ ان کیمرہ سیشن میں سیاسی جماعتوں کے رہنما بڑی تعداد میں شریک۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جارحیت مسلط کی تو افواج پاکستان منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کیمرہ سیشن میں سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا گیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات عطا تھارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی قومی سلامتی پر سیاسی رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ۔ ذرائع کے مطابق ان کیمرہ سیشن میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر قومی سلامتی کے امور زیر غور آئے۔ ان کیمرہ سیشن میں سیاسی جماعتوں کے رہنما بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے۔ جارحیت مسلط کی تو افواج پاکستان منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کیمرہ سیشن میں سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا گیا۔ نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ بتائے گا ان کیمرہ بریفنگ کے حوالے سے۔ جی بہت اہم ان کیمرہ سیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا تھارڑ نے قومی سلامتی پر سیاسی جماعتوں کے ارکان کے ساتھ ان کیمرہ سیشن جو ہے وہ جاری ہے، معافی چاہتی ہوں، سیشن جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اور ابھی کی اطلاعات کے مطابق ان کیمرہ سیشن میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر قومی سلامتی کے امور زیر غور ہیں اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں ہونے والے سیشن میں سیاسی جماعتوں کے رہنما بڑی تعداد میں شریک ہوئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی جماعتوں کے شریک رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا ہے اور کہا ہے پاکستان ایک پرامن ملک ہے، خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے کہ وہ دشمن کی ہر طرح کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کیمرہ سیشن میں بتاتے چلے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا ہے۔ بہت شکریہ سمیرہ خان، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی۔ اور پاک بھارت جنگی کشیدگی کے دوران آج کی سب سے اہم خبر کہ ترکی کا بحری بیڑا کراچی پہنچ گیا ہے اور یہ سمبولیکلی ایک بہت اہم قدم اس لیے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں چائنیز J-10C اور PL-15 میزائل جو چین کے لیٹسٹ ہتھیار ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائزڈ ہیں وہ بھی پاکستان آ چکے ہیں اور J-17 تھنڈر بلاک 3 جو ہے ان پر بھی PL-15 میزائل فٹ ہو سکتے ہیں جن کی بیونڈ ویژول رینج 200 کلومیٹر ہے اور جو رافیل سے بھی زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب جو ترکی کا بحری جہاز پاکستان پہنچا ہے باخدا، اس کا نام ہے، خیر سگالی دورے پر یہ کراچی پہنچا ہے اور کراچی بندرگاہ پر اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور بحری تعاون، پاک ترک بحری تعاون اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہمیت اس کی اس لیے ہے، حالانکہ یہ ایک سمبولک صرف ارائیول ہے، لیکن اہمیت یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کا ڈیفنس کوآپریشن بہت زیادہ ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس تناظر میں اس وقت جو پاک بھارت جنگی کشیدگی جاری ہے اس پہ یہ بہت ضروری ہے کہ نیول کولیبریشن ہے پاکستان کی اور پاکستان ترکی سے مل جم پروگرام کے تحت جو لارجسٹ ایکسپورٹس ہیں ترکی کی وہ پاکستان کو، اس میں ایڈوانس وار شپس ہیں، نیول وار شپس
जो पाकिस्तान ने तुर्की से लिए हैं, और पहला PNS बाबर वो पाकिस्तान पहुंच भी चुका है सितंबर 2023 में। उसके बाद जॉइंट प्रोडक्शन हो रही है कान 5th जनरेशन फाइटर जेट की, जो कि लेटेस्ट वर्जन है और जिसकी तस्वीर भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ये पाकिस्तान की एयर कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद बढ़ा देगा इंडिया की निस्बत। और तीसरा है ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड UAV प्रोक्योरमेंट। पाकिस्तान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी तुर्की के साथ जॉइंट एक प्रोडक्शन शुरू की है और एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान को तुर्की कर रहा है, और ये भी 2023 में डिलीवरीज इसकी पहुंचना पाकिस्तान शुरू हो गई हैं, जिसका इंडिया को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की ये कैपेबिलिटी जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी की और UAV जो उसके पास हैं अनमैन्ड व्हीकल्स। और चौथा जो है वो सबमरीन मॉडर्नाइजेशन है। पाकिस्तान के पास अगोस्टा 90B सबमरीन्स हैं, जो 3 जो फ्रांस से ली गई थी, और उनकी अपग्रेडेशन पाकिस्तान कर रहे हैं। और उसकी अहमियत मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है कि अगोस्टा सबमरीन जो है इसमें सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और उसका मतलब ये होता है कि अगर एक दफ़ा न्यूक्लियर हमला खुदा ना खास्ता दोनों अतराफ़ कर दें, तो उसके बाद अगर कुछ भी ना हो तो फिर सबमरीन के ज़रिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होना, ये चंद एक ममालिक के पास है दुनिया में, पाकिस्तान उनमें से एक है। पाँचवा है मिसाइल डेवलपमेंट कोलैबोरेशन, और पाकिस्तान का जो फास्ट मिसाइल है प्रोग्राम वो तुर्की के गोकचुक प्रोजेक्ट के साथ जॉइंट वेंचर है, और उसके ज़रिए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी तैयार किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PL-15 चाइना से आ रहे हैं, और ये टर्की के साथ हमारा है। और 6 जो है हाई लेवल स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट पाकिस्तान ने इसी साल 2025 के फरवरी के महीने में किए हैं, जिसमें डिफेंस एक बहुत आम इशू है। और ये एक बहुत अहम बात इसलिए भी थी कि इस तनाजुर में जब इंडिया को दुनिया से अपनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तुर्की के बहरी जहाज़ का यहाँ आमद एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इसी के साथ आज का अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। टॉप स्टोरी होगी भारत से जंग, पाकिस्तान सलामती कौंसिल में पहुँच गया, और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे कामरान यूसुफ सीनियर सहाफ़ी हैं, और सुमेरा खान नुमाइंदा खसूसी समा हैं, जो का लाइन ऑफ कंट्रोल पे जा रही हैं। विज़िट है वहाँ पे सहाफ़ियों का नेशनल और इंटरनेशनल। और हमारा आज का हॉट इशू होगा J-10C बमुकाबला राफेल, और इसमें रिटायर्ड एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब से हम बात करेंगे कि क्या हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान पिछले कुछ दिनों में। और एडिटोरियल हमारा होगा आज का सरहद पर तनाव, बहार में चुनाव। जब भी इंडिया में इंतखाबात आते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी क्यों बढ़ जाती है, ये हमारा आज। और जो मैंने अभी आपको बताया हमारी टॉप स्टोरी कि पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फ़ैसला किया है। उसका इजलास बुलाने के लिए अपने मुस्तकिल मंदूब को कह दिया गया है, और भारत के जारहाना इक़दामात जिसमें इंडस रिवर ट्रीटी को मनसूख करना, और पाकिस्तान पर हमला करने के इक़दामात जिसकी वो तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान के भारतीय जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद करने का ऐलान भी किया गया। और ये सारी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इस पर सलामती कौंसिल को एतमाद में लिया जाएगा, क्योंकि एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका, चीन, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप के बाद अब रूस ने भी इंडिया को मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान के साथ अपने मामलात डायरेक्टली तय करें। तो इंटरनेशनल सपोर्ट इंडिया को उस तरह नहीं मिल रही जिस तरह वो तवक्को कर रहा था। हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे सुमेरा खान आपसे। ये बताइएगा, जो अभी पाकिस्तान ने ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, ये कितनी अहम है और क्यों अहम है, ख़ास तौर पे जबकि हम तो जंग के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या अचीव करना चाह रहा है? अफसर साहब, मेरे ख्याल में ये हमारे दफ्तर ख़ारजा की, हमारी वजारत ख़ारजा की एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर ये इसी वक्त में इसको न सिर्फ बुला लेते हैं बल्कि अपना स्ट्रॉन्ग एक्शन केस, जो कि आई थिंक पाकिस्तान पहले ही नैरेटिव की जंग हो, ये बहुत तल्ख लफ्ज़ होता है बाय द वे, लेकिन अगर कोई मुल्क नैरेटिव की जंग जीत जाए तो उसके लिए फिर काइनेटिक की जंग जीतना मुश्किल नहीं है। और पाकिस्तान पिछले 5 से 6 साल के अरसे में काइनेटिक वॉर फ्रंट के ऊपर भी अपनी बढ़तरी दिखा चुका है। एयर सुप्रीमेसी हो, लैंड सुप्रीमेसी हो, सी सुप्रीमेसी हो, अब नैरेटिव की जंग रह गई थी, उसमें भी आपने मात दे दी है। सिफारती सतह पर इस वक्त, क्योंकि हम लम्हा ब लम्हा जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, डेवलपमेंट्स आ रही हैं, गो कि उसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी शामिल है, मगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त एक सेहतमंद रुझान ये है, क्योंकि दुनिया को
कोई एविडेंस नहीं दिखा सका भारत अपनी बड़ी लंबी ब्रीफिंग्स में, तो पाकिस्तान इस नैरेटिव की जंग को ऑलमोस्ट जीत चुका है। और सलामती काउंसिल के इजलास में अगर ये एजेंडा रखा जाता है, ये इतनी जल्दी वैसे नहीं होगा, रखा जाएगा ना वहां तो वैसे ये इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि SOPs, उसका प्रोटोकॉल, उसकी ड्राफ्टिंग, वो सब कुछ काफी लंबा काम होता है। मगर बुला भी लिया जाए, कायल कर लिया जाए कि इजलास बुलाना है, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाना है, तो इट वुड बी अ बिग विन फॉर कामयाबी होगी। कामरान साहब ये बताइएगा, आपके ख्याल में पाकिस्तान ने जो सलामती काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाया है, ये डिप्लोमेटिकली राइट मूव है? और अगर है तो आपके ख्याल में कितनी कामयाबी की उम्मीद है पाकिस्तान को? आई थिंक बिल्कुल डिप्लोमेटिकली बेहतरीन मूव है, क्योंकि पाकिस्तान का व्यू तो बड़ा क्लियर है। ये जो करंट हॉस्टिलिटीज हैं विद इंडिया, इसका आगाज भारत ने किया। पहलगाम में एक हमला होता है बगैर इन्वेस्टिगेशन के, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगता है और उसके बाद एक माहौल बनाया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तो ये जंग नहीं चाहता और उसको रोकने के लिए फिर जो तमाम आपके पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं वो बायलैटरल लेवल के ऊपर आप एक्सरसाइज करते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर भी है इस वक्त UN सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इससे फायदा पाकिस्तान को कम से कम ये होगा, एक तो दुनिया को बताना कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है इस खत्ते के अंदर, और दूसरा आई थिंक इसका जो ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का यकीनी तौर पर होगा भी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर आप इशू की बात करें तो असल तो इशू आपका जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है वो कश्मीर है। तो आई थिंक इसके पीछे एक ये भी मंतक है कि एक तरफ जो भारत के साथ हमारी एक हॉस्टिलिटी तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की तवज्जो या लोग अगर भूल भी गए हैं तो इस तरफ दिलवाई जाए कि असल जो इशू है दोनों मुल्कों के दरमियान वो तो कश्मीर है। अब जहां तक कामयाबी की बात है, आई थिंक इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक भी हमें होना पड़ेगा। चीन जो हमारा ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो माजी में भी हमारी UN सिक्योरिटी काउंसिल में मदद करता रहा है, तो वो तो हमारी मदद करेगा। रशिया की पोजीशन भी मोर और लेस टिल्ट करती है जहां चाइना जाता है, उसमें अहम आई थिंक एक अमेरिका का किरदार होगा। फिर फ्रांस जो है परमानेंट मेंबर्स, उनके बड़े क्लोज रिलेशनशिप है विद इंडिया, तो इंडिया उसको काउंटर करने के लिए अपनी लॉबिंग करेगा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अगर इजलास बुला भी लिया जाता है तो उसमें बिहाइंड द सीन काफी लहदे होगी, क्योंकि जो भारत के इत्तेहादी हैं ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम के ऊपर ऐसी कोई बात ना जाए जहां पे ये लगे कि पाकिस्तान जो है उसने इंडिया को मात दे दी है। एक एफर्ट पाकिस्तान की तरफ से अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी वहां पर लहदे होगी। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को जो मनसूख करने का ऐलान किया, हमें इन्फॉर्म भी कर दिया इंडिया ने, क्या उसकी बुनियाद पे सलामती काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा सकता? देखिए उसमें मेरा ख्याल में हमारी जो टीम है लीगल वो काम तो इस वक्त कर रही है, वो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी। अब इसके बारे में भी मुख्तलिफ आरा हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज को जो प्रोटोकॉल्स गवर्न करते हैं उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी मुल्क यूनिलैटरली ना तो इस तरह की ट्रीटी को रिवोक कर सकता है, ना हेल्ड इन अबेंस कर सकता है। तो पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल अफेयर्स को या लीगल जो एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं कि ये तो क्लासिक एक केस है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, तो मेरा ख्याल में उसके लिए भी पाकिस्तान की कोशिश है। और आज की जो स्टेटमेंट है दफ्तर खारजा की, उसमें बाकायदा इसका जिक्र किया गया। मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पहलू है कि बर वक्त जो है वो आपको प्रीएम्प्ट किया जाए कि भारत जो इक़दाम करने जा रहा है, क्योंकि जो ओवरऑल बड़ा इशू है, आई थिंक बाकी मामला तो शायद ठंडे हो जाएंगे, लेकिन ये जो पानी वाला मामला है कि इटसेल्फ इतना सीरियस है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जेन्युइनली जंग हो सकती है। बिरादरी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आई। प्रेस क्लब से रैली शुरू हो गए। शुरका का कहना है भारत में अक़लियतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी अपने मुल्क और फौज के साथ है। इसी पर अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे कासिम अरशद। जी कासिम। अरे बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर अक़लीती बिरादरी की जानिब से रैली निकाली गई है। अक़लीती बिरादरी के अरकान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान के सब मसीही अपनी हुकूमत के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, और इंडिया या कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से देखेगा उसके खिलाफ शीशे अपलाई दीवार की तरह खड़े हैं। और हम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इंडिया को भी ये चैलेंज देना चाहेंगे कि अपने मुल्क में बसने वाले जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें, और ये जो वहाँ पे तासुब बढ़ता जा रहा है उसको रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे। हमारी फ़ौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है, प्रोफेशनल है, और हम उनके साथ सोलिडेरिटी करने के लिए आए हैं और दुश्मन को हर तरह का जवाब देने के लिए। बिल्कुल, दुश्मन को हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अक़लीती बिरादरी के अरकान ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर तो अक़लीतों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, ताहम पाकिस्तान में जो अक़लीतें हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के साथ हैं। जी, ऐसे में इस्लामी ताउन तंजीम के
کے انسانی حقوق کمیشن نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف مظالم پر اظہار تشویش کیا. کہا پہلگام واقعے کے بعد ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. نفرت انگیز حملوں کی غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی جائے. IPHRC کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اقوام متحدہ اور OIC کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دی جائے. OIC نے بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو بھی مسترد کر دیا. مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, اجتماعی سزا بند کی جائے. OIC نے اقوام متحدہ سے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی اپیل کر دی. آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کا مطالبہ دہرا دیا. ترک بحری جہاز خیر سگالی دورے پر کراچی پہنچ گیا. بندرگاہ پر پرتپاک استقبال کیا گیا. ISPR کے مطابق ترک بحری جہاز کی آمد لازوال دوستی اور بھائی چارے کی علامت ہے. دورے کے دوران پاک ترک بحری تعاون پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کے جارحانہ اقدامات. پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں میں تیزی. وزیراعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب کو ٹیلی فون. بھارتی اشتعال انگیزی سے خطے کے امن کو خطرات پر تشویش کا اظہار. وزیراعظم نے ایک بار پھر عالمی سطح پر شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کر دی. کہا ملک اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے, کسی تنازع میں الجھنا نہیں چاہتے. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے بھی ملیشیا کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا. سندھ طاس معاہدے کی معطلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. اس وقت پریڈ اپنے اختتامی لمحات کی جانب گامزن ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, ان کے ہمراہ دیگر علماء موجود ہیں, جبکہ اس سے پہلے وارث بیگ صاحب بھی موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں وارث بیگ پرفارم کریں گے. یہ وہ تاریخ ساز لمحات ہیں جب علماء, مشائخ, ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں, ہم اپنے دشمن کے زوم باطل کو مٹی میں ملا دیں گے. یہ جھنڈا جو آج یہاں لہرایا گیا ہے یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ قوم کا غرور ہے, ایک ماں کا فخر ہے, ایک سپاہی کا ایمان ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تم اس کے سائے پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارے آسمان کو سیاہ کر دیں گے, ہم تمہارے خیمے اکھاڑ دیں گے اور تمہیں تمہارے ہی خوابوں کے ملبے میں دفن کر دیں گے. یہ پاکستان ہے, نہ ختم ہونے والی داستان ہے. یہاں گردنیں جھکنے کے لیے نہیں ہیں, یہ گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن دشمنوں کے لیے جھکنے والی نہیں ہیں. یہ نظریہ بکنے والا نہیں ہے. اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں 3 باتیں کرنا چاہوں گا اس موقع. واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک. واہگہ بارڈر پر پنجاب رینجرز کی جانب سے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا گیا. بچوں, جوانوں, خواتین نے بڑی تعداد میں اس پریڈ میں شرکت کی. پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونجتے رہے. اس واقعے کے بارے میں ہندوستان کا یہ الزام ہے مودی حکومت کا کہ پاکستان کے اوپر الزام لگ رہا ہے. تو اس موقع پہ میں پاکستان زندہ باد, جیوے جیوے پاکستان کے نعرے گونجتے رہے. واہگہ بارڈر پر شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا گیا رینجرز کے جوانوں کی جانب سے, اور بچے شریک تھے, جوان, خواتین بڑی تعداد میں اس پریڈ میں شریک ہوئے جنہوں نے اس پریڈ کا مظاہرہ کیا اور نظارہ کیا. واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. فلک شگاف نعرے لگائے گئے. بڑی تعداد میں جو ہے وہ وہاں پر پہنچے شہری. حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے جوانوں کی سپورٹ کریں, ان کی مدد کریں. میں اس موقع پہ 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا یہ ہمارے دین میں, ہمارے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ شرعاً جائز نہیں تھا, یہ حرام تھا, ظلم تھا, اور کوئی بھی مسلمان اس کی حمایت نہیں کر سکتا. کسی بھی بے گناہ کو مارنا ہمارے دین میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہندوستان پاکستان پہ اس کا الزام لگا کر بہانہ بنا رہا ہے. تو اس موقع پہ ہمیں یہ چاہیے پاکستان ہندوستان کو کہ ایک تیسرے فریق پر ہم اعتماد کریں, اور تیسرا جو فریق ہے اس میں 3 ملک ہونے چاہیے. ایک ہندوستان کا ایک دوست ملک ہو جو ان کے نزدیک قابل اعتماد ہو, ایک پاکستان کا دوست ملک ہو, اور تیسرا مشترکہ دوست ہو. تو یہ تینوں ملک اس بات کی تحقیق کریں. اس سے پہلے کسی پر الزام لگانا درست نہیں ہے.
तीसरी बात ये कि जिस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है उसके असबाब ख़ुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था, अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख़्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफ़ात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फ़ौज के बारे में बहुत सारी आरात थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है और हम अपने फ़ौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। और इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाज़ों पे लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माँओं की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस, उनकी देखभाल, ये ऐसी चीज़ हम अपनी माँ को देखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं इस मौके पे कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त परेड हमें दिखाई और जिहाद का एक मंज़र था और ग़ज़वा हिंद की शुरुआत हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज को, कर्नल साहब को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपनी पूरी वफ़द की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स की जानिब से परेड का मुजाहरा किया गया। परचम उतारने की तकरीब का अहतमाम किया गया था जिसमें शहरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उलमा मशाइख भी यहाँ पर मौजूद थे। उलमा की जानिब से इस परेड के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की गई और एक ही पैगाम भारत को दिया गया कि ये पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद है, ये पूरी कौम एक है, पाक अफवाज के साथ शाना बिशाना बल्कि 2 कदम उनसे आगे बढ़कर खड़ी है। हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने पैगाम दिया है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं, ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में, कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं। आप एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी ख़राब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी ख़राब हुई हुई है, सबको मिलके उसकी खोपड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है। जंग की धमकियाँ दे रहा है वो, मैं यूँ कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा, झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया, आप सबूत भी दिए। भाई अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी 2 में झगड़ा होता है, तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहाँ की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो अब चूँकि वो जंग की धमकियाँ दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी ज़िम्मेदारी है कि हम अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। मैं कराची से सफ़र करके आया हूँ और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएँ वाघा बॉर्डर पे
اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، صحیح حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقیتم فاصبروا واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو، لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے، تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے۔ الجہاد مختصر طریق الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے۔ تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے، تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے۔